Well, it's such a joy to welcome you all for the Kamil family devotion time. It is 7 o'clock, and I missed you yesterday. In fact, I couldn't be here, as we know that now we are having it only on Monday, Wednesday, and Fridays. But we have it open for you in the morning at 11 o'clock and evening at 7 o'clock. Carmel community will be having some of the other program, so don't miss it every day 11 o'clock and then 7 in the evening. Let's now worship the Lord together and lift up his wonderful name. Father in heaven, we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Hallelujah. Let's put our hands together and give glory to the Lord. In our God, He reigns forevermore. और हमारा परमेश्वर हमेशा हमेशा राज्य करने वाला है. He is the Lord of Lords and King of Kings. वो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है. And what a joy to worship our God together and lift up His wonderful name. और ये कितनी अद्भुत और सुंदर बात है कि हम एक साथ उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसको महिमा देते हैं. Well, after a one-day break, I welcome you all back to our devotional.
और बाइबल अध्ययन के एक दिन की ब्रेक के बाद मैं आपको फिर दोबारा स्वागत करता हूँ। Well, I would like to read a scripture from the Bible और मैं बाइबल से एक पद को पढ़ना चाहता हूँ from Matthew chapter 18. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वां अध्याय I would like से। to talk to you about authority in prayer. और आज मैं शाम के समय आप लोग से बातें करना चाहता हूँ कि प्रार्थना में अधिकार God's promises are true for us. और परमेश्वर का जो वायदा है वो सच्चा है। So as God's children, we need to understand the privileges that we have in the kingdom of God. And one of the privileges is that God has given us authority to pray for different things, and God has given us the authority to claim victory. और हम परमेश्वर के संतान होने के कारण हम एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें ये जो सौभाग्य मिला हुआ है कि परमेश्वर के जो अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया गया उसके वचन उसके वायदे के अनुसार उसको हमें अपनी अच्छी तरह से समझना जरूरी है। Matthew 18 chapter verse 18 और 18 के 18 में इस प्रकार से लिखा says, हुआ है, "Surely I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." और वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। This is the privilege of a child of God. और ये परमेश्वर के संतान के लिए एक सौभाग्य है। Well, in my devotional, I have dealt a lot with prayer. और मेरे जो बाइबल के अध्ययन में मैंने कई बार मैं प्रार्थना के विषय में बहुत ज्यादा उसको बताया। Because we are in lockdown, and prayer is the mightiest tool that God has given in our hands, so that we can approach God, and God would do great and mighty things in our lives, through our lives, for our lives in prayer. और हम सब जब लॉकडाउन में हैं तो परमेश्वर हमारे हाथ में सबसे अच्छा हथियार दिया वो है प्रार्थना, कि हम प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में अपने जीवन के लिए हम प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीजों के अंदर में प्राप्त कर सकते So हैं। it's very important for us to understand the meaning of prayer and how do we approach God, and what can happen if I and God come together, and if you and God come together in the proper manner, God can do marvelous things in our lives. और हमें एक बात को समझना है कि हम प्रार्थना के द्वारा हम क्या चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं, जब मैं और परमेश्वर और आप और परमेश्वर हम एक संधि में आ जाते हैं और हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना और कैसे करना है इसको हम सुचारू रूप से करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में महान सामर्थ्य के काम को करेगा। So here it says, whatever you bind on earth और यहाँ भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे will be bound in heaven. और वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। See, the word bind, it's a legal meaning, it's a legal word. और ये जो बांधना जो शब्द है उसका एक कानूनी अर्थ है। It means to place contract on something. और ये जो बताता है कि किसी एक चीज के साथ एग्रीमेंट करना या फिर समझौता करना। So this is what happens when we begin to pray in the will of God. और ये शुरू होती है जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Many a times we pray a lot, but most of the time our prayers are for our own desires. What we want to happen, we try to ask God, please do my will, O God. We very rarely pray for God's will. और कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं हम प्रभु के समक्ष में बहुत सारी चीजों के विषयों को बताते हैं और वो सारे विषय क्या होता है, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए नहीं लेकिन हम हमारी जो होती है उसको हम प्रभु को व्यक्त करके कहते हैं। Sometimes we pray for our desire to happen, and that does not happen. Then we start fasting and praying. We are trying to twist the hand of God by somehow, God, I want my desire to be done, but that is not going to happen. और कई बार हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख में जाके हमारी जो इच्छा के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं और जब उत्तर नहीं मिलता हम उपवास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जिद के कारण परमेश्वर के हाथ को मुड़ा दें और अपने जो इच्छा को पूरा कर ले, लेकिन एक कदापि ऐसा नहीं होता है। Well, what we need to do is that, Lord, to discern the will of God in that particular prayer thing that we are praying for. God, what is your will for my life in that particular matter? और हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो हुआ उस विषय के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने
प्रभु इस विषय में मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा क्या है वो पूरा हो जाने दे, उसके लिए मैं प्रार्थना करना So है। when we desire, when we listen to the desire of God and we begin to pray in the will of God, and then that prayer becomes a contract, a legal contract between you and God, and it will happen, that's bound to happen. और फिर जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तब क्या होता है कि आप और परमेश्वर के बीच में एक कानूनी, एक बंधन, एक समझौता, एक एग्रीमेंट होता है, और जिसके द्वारा हम प्रार्थना के द्वारा करते हैं। So throughout the devotion, what we saw was that our prayers are not for our will to happen, but for us to discern God's will and let God's will happen in our lives. और हमारे बाइबल अध्ययन के द्वारा हमने देखा कि जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के दौरान हम अपनी इच्छा के लिए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जा, और यही होता है कि जो हम बांधते हैं वो बंधा जाता है। When we do that, believe me, the King of Kings is going to stand with us, and the kingdom of God is going to stand with us. There is no power that is going to take that away from us, but we need to discern the will of God and pray the will of God, and the whole kingdom will back us for that prayer to happen. और जब हम ऐसे परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक उसकी इच्छा को पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो राजाओं का राजा है वो हमारे बीच में उतर आएगा, परमेश्वर का राज हमारे साथ देगा, और उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना के द्वारा जय को पा सकते हैं। There was a great author in the kingdom of God. His name is A.W. Tozer. He died in 1963, and he authored more than 60 books. A famous person, and what he writes about when we go in prayer. और फिर एक बहुत बड़े लिखने वाले लेख जिनका नाम A.W. टोजर था, और उन्होंने करीबन 60 से ज्यादा किताबों को लिखा। उन्होंने एक अपनी किताब में प्रार्थना के संदर्भ में इस प्रकार से लिखा, जो 1963 में उनकी मृत्यु हो गई थी। Well, what he says that when I go to God in prayer, what is the image that I have about God? और उन्होंने अपनी किताब इस प्रकार से लिखा कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ, तो परमेश्वर के प्रति मेरी जो कल्पना क्या होती है, उसके प्रति मेरी जो सोच क्या होती है। Well, some people think that they get this image that Jesus hanging on the cross. और कुछ लोगों की कल्पना होती है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है। Well, that is a great example of God's love for us. And we know that the love of God that is shown on the cross of Calvary is uncomparable. There we see the God's love for us. और ये बहुत अच्छी बात है कि जो कल्वरी क्रूस के जो चित्रण को हम अपनी नजरों में जब देखते हैं, वो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हमें दर्शाता है। कितना बड़ा प्रेम है जो उसने कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए किया है। But when we go to God in prayer, I would say that the image that we should have in our mind about Jesus is seated in heaven, at the right hand of the Father, and earth is his footstool. और देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा चित्रण ये होना चाहिए कि वो राजाओं के राजा परमेश्वर के देनी और सिंहासन पर विराजमान है, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, and he is our Father, और वो हमारा पिता है। So when we go to him, we need to understand our privileges as God's children, and Jesus seated on the right hand of the Father with all authority that he has. और हमें एक बात को समझना है कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि जब हम उसके संतान हैं, तो हमें ये अच्छी भली बात समझ जाना चाहिए कि वो प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा अपने पिता के देनी और सिंहासन पर विराजमान है। He has all authority. और उसके पास सारा अधिकार Because है। God has given him all authority. क्योंकि परमेश्वर से सारा अधिकार दिया है। In heaven, on earth, under the earth, every authority is given to Jesus. और प्रभु यीशु मसीह को पिता ने सारा अधिकार दिया है, स्वर्ग में का और पृथ्वी का, और उस पृथ्वी के सारे नीचे सब बातों का अधिकार उसको दिया गया है। And you are a child of God. और आप परमेश्वर के संतान So हैं। as a child of God, you also have authority. और परमेश्वर के संतान होने के कारण आपको भी यही अधिकार दिया गया Because है। Jesus said, I have the authority and I give you the authority. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अधिकार दिया गया और वही अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूँ। So all of us need to understand who we are. इसलिए हम सभी को समझना है कि हम कौन हैं। Even Isaiah needed a vision from the Lord. और यशायाह ने परमेश्वर से एक दर्शन को पाया। He did not have the right vision in the beginning. और शुरुआत में परमेश्वर के प्रति उसके सही एक चित्रण नहीं था, सपन नहीं था। But then he saw the vision that the Lord was
highly lifted up. लेकिन उसके बाद उसने दर्शन में ये पाया कि परमेश्वर जो सिंहासन पर ऊंचे पे उठाया गया है, So that vision changed his life. और वो दर्शन उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, That vision changed his perspective. और उसकी जो सोच को ये दर्शन ने बदल दिया। In the same manner, और इसी रीति we से need to have an understanding about our God, who our God is, and what our privileges are. और इसलिए भी हमें भी भली बात समझना है कि हमारा परमेश्वर कौन है और फिर वो कितना महान है करके। Our God is bigger than our biggest problems. और हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, महान है हमारी बड़ी समस्याओं से भी। Our God is much better than our best thoughts. और हमारी सोच से भी बहुत ही भली और बहुत अच्छी बात है हमारा परमेश्वर। God is indefinitely, He is infinitely wiser and more gracious and more powerful than we can ever imagine. और हम कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अनुग्रहकारी है, दयालु है और वो सब समझ से परे हैं। So first of all, we need to have an understanding about God. और सबसे पहले हमें परमेश्वर के बारे में एक समझ होना जरूरी And है। then Jesus says, और उसके बाद प्रभु यीशु कहता है that when you agree together on earth, और तब जब तुम दो लोग एक साथ सहमति में आते हो, so you are binding something in heaven, agreeing together, और तुम स्वर्ग में बांधते हो उस सहमति के द्वारा, and so here you bind on the earth, and then it is bound in the spiritual realm in heaven. और जब तुम सहमत होकर एक बात को तुम पृथ्वी पर बांधते हो तो वो स्वर्ग में भी उस आत्मिक स्तर पर बनता है। And then, the effect of that, the result of that is unbelievable. और जब उसका जो परिणाम होता है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। So in verse chapter 18, Matthew chapter 18 verse 18, Jesus said, और इसलिए मत्ती उसके 18 के 18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, whatever you bind on earth will be bound and in heaven, whatever you loose on earth will be loosed in heaven. और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। And then verse 19 it says that, again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done from them by my Father in heaven. और 19वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगा। So here binding means tying together. और यहाँ पे बांधने का अर्थ है कि एक साथ जुड़ना, To tie together. और एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ जाना या बंध जाना। This is the same word that is used in marriage. और हम देखते हैं कि शादी विवाह में भी यही शब्द का प्रयोग किया जाता है। That the husband and the wife, they will become one flesh, one body. और पति और पत्नी वो आपस में बंध जाते हैं, एक शरीर हो जाते So हैं। even in prayer, when we pray, join our hearts and pray together, two people together become one spirit. और इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर बाइबल बताता है कि जब पृथ्वी पर दो जन एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो एक सब बन जाते हैं। So something powerful happen when we agree together. और जब हम दो जन सहमत हो जाते हैं तो कुछ महान कार्य वहाँ पे होता है। So it's not addition like one person praying and the other person with his faith together, it becomes double, doesn't happen, but it multiplies. और फिर ऐसे ही देखिए, जब एक व्यक्ति वो और उसके साथ दूसरा व्यक्ति जुड़ जाता है और एक ही विश्वास के साथ प्रार्थना है तो वो दुगना नहीं होता है लेकिन वो गुणात्मक रूप से बढ़ जाता है। That is the kingdom principle. और यही है परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत। Bible says one can chase 1,000 and two 10,000. और बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति 1000 को गिराता है और दो लोग 10,000 को So गिराते it's हैं। not addition, but it is multiplication. और इसलिए यहाँ पे जोड़ नहीं होता लेकिन गुणा होता है। So if you pray together, God's kingdom will support your prayer and God will answer that prayer. और इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जुड़ के आप प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर गुणात्मक रूप से बढ़ोतरी को देता है। Always remember that you are praying for the will of God. और हमेशा स्मरण रखिएगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के लिए। So two people coming together praying for the will of God, अब जो दो व्यक्ति एक साथ आके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा के लिए, then God notarizes that. और उसमें परमेश्वर क्या करता है कि अपनी मोहर को लगा देता है। God notarizes that. और परमेश्वर उसमें मोहर लगाता है। Not my will, not your will, but God's will. मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा। So, and bind has the word bind also means to chain together. और यहाँ पे बांधने का एक और अर्थ है कि चेन, जैसे
संकल्प में जुड़ना। There are more than 3,000 promises in the Bible for God's children. और परमेश्वर की संतान के लिए 3,000 से ज्यादा परमेश्वर का वायदा प्रभु के वचन में दिया गया है। Apostle Paul said all the promises of God in the Bible for God's children are yes and amen. और प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन में जितना भी वायदाएं दिया गया है वो परमेश्वर के संतानों के लिए है और वो हाँ और आमीन है। So our prayers are chained with the promises of God. और हमारी जो प्रार्थना वो एक श्रृंखला में जुड़ी हुई है प्रार्थना के द्वारा। So when you pray, remember one thing. आप जब प्रार्थना करते हैं एक बात को स्मरण रखिएगा। Don't always pray our own prayers. और फिर हम जब ना Our own words. और सिर्फ हम अपने शब्दों के द्वारा प्रार्थना ना करें। Because many times we start praying our words and we close with our words, amen. और कई बार हम क्या करते हैं अपने शब्दों से प्रार्थना को शुरू करते हैं और अपने शब्दों के साथ उसको समाप्त करके आमीन कहते हैं। As we are learning to pray, as we are spending more time in prayer, और जब हम प्रार्थना करने सीख रहे हैं और बहुत समय प्रार्थना में समय को बिता रहे हैं, let us not just be one-sided prayer. We just tell God everything what we want. और हमारी प्रार्थना एक तरफ की प्रार्थना ना हो जाए कि हम सिर्फ प्रभु से हम कहते रहें। Allow God to speak to us. और हम परमेश्वर को अनुमति दें कि वो हमसे बातें करें। And also when you pray, don't just pray our own words, but also let's pray God's promises. You can say some of the promises of God in your prayer because your prayer is chained, is tied or bound with the promises of God. और जब भी आप प्रार्थना करते हैं आप सिर्फ अपने ही शब्दों को बोलने वाले नहीं, लेकिन आप दूसरी एक और कर सकते हैं कि आप अपने शब्दों के साथ ही साथ परमेश्वर के जो वचन दिया गया है और उस जो वायदों को दिया है उसको अपने मुंह से आप अंगीकार करके बोलिएगा, क्योंकि हमारी जो प्रार्थना है वो एक चेन के जैसे जुड़ी हुई है परमेश्वर के वचन में दिए हुए वायदों के साथ। In the Old Testament, they used to tie the word of God in a visible place. और फिर पुराने नियम में लिखा हुआ है कि वो लोग परमेश्वर के वचन को ऐसी जगह पे बांधते थे जो दिख सकता था। Well, we don't do it in the New Testament. लेकिन नए नियम में हम ऐसे वचनों को शरीर में बांधते नहीं But the हैं। idea was that they could see the word of God. It remains them all the time. और लेकिन उनका तात्पर्य ये था कि परमेश्वर का वचन को हमेशा देखे और उसको वो लोग मनन करते रहे, स्मरण करते रहे। Because God's promises are very important for us. क्योंकि परमेश्वर का जो वायदा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। And Deuteronomy chapter 6 verse 8 also talks about that. और व्यवस्था विवरण 6 के 8 में लिखा हुआ है। So what we need to chain is that we have to bind our prayer with the word of God, with the promises of God. तो हमें क्या करना, हमारी प्रार्थनाओं को है चेन के जैसे उस श्रृंखला में जोड़ना है और वो जो है परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में दिए हुए वायदा है। How can we chain God's word into our mind? और किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में चेन के जैसे जोड़ सकते हैं? By memorizing the word of God. परमेश्वर के वचन को याद करके। It will get into our minds. और वो हमारे मस्तिष्क में चला जाएगा। When for our family, और हमारे परिवार में after this family prayer, we have another family prayer at 9:30, sometimes 10 o'clock. और हमारी जो अभी जो पारिवारिक प्रार्थना हो रही है उसके बाद हम एक और अपनी पारिवारिक प्रार्थना करते हैं 9:30 बजे, कई बार वो थोड़ा लेट भी हो जाता है। Because we are in lockdown. क्योंकि हम सब लॉकडाउन हैं। So we come together, we sing song, we read the scripture. और उस समय हम क्या करते हैं, हम एक साथ आते हैं, फिर गीतों को गाते, बाइबल के अध्ययन को पढ़ते हैं। And in the lockdown, we made a decision that all of us will memorize few scripture from the chapter that we are reading that day. और फिर हमने लॉकडाउन होने के बाद एक बात में हम निर्णय लिया कि हर दिन हमारी पारिवारिक प्रार्थना में जो भी अध्याय को हम पढ़े हुए रहते हैं पहले दिन, उसमें से कुछ बाइबल के पदों को याद करके हम आते हैं और आपस में हम बताते हैं। all of us memorize God's word. और हमारे घर में जितने लोग हैं हम सब परमेश्वर के वचन को याद करते हैं। Let me also confess here that they all do much better than I. और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हमारे जितने बच्चे हैं वो हम लोगों से बहुत अच्छा से याद करते हैं। And yeah, they are very clear. They memorize more Bible verses, so good for them. So it is important that we chain our, fill our minds with God's word through memorization. और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे दिलों और दिमाग को परमेश्वर के वचन के द्वारा याद करके उसको भरना। And chain God's word with our heart through meditation of God's word. और फिर हमारे जो परमेश्वर के वचन को हमारे मनों के साथ जोड़ना, जिसको मनन के द्वारा कर सकते हैं। And chain God's promises in prayer through for the past, for the present and for the future. We chain it
through prayer so that we can claim God's promises for us. और हम परमेश्वर के वचन को अपने प्रार्थना के द्वारा एक हम चेन के जैसे बंध जाए, जिससे कि वो हमारे अतीत, हमारा वर्तमान और हमारे भविष्य और उस प्रार्थना उस वचन के द्वारा हम उसको प्रोक्लेम कर सकते और हम उसको मांग सकें। Hallelujah. Hallelujah. So when we come together in prayer, और इसलिए जब हम प्रार्थना में एक साथ आते हैं, there is God's power, God's support that backs those prayers. और फिर परमेश्वर का जो वचन हमारे पीछे रहता है, जो हमें सामर्थ देता है और हमें सपोर्ट करता है। Always remember, हमेशा याद रखिएगा, don't just pray for our will to happen. और आप अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना ना करें। Don't think that if you pray the same prayer many times, God is going to answer that prayer. और ये भी ना सोचे कि हम एक ही विषय को जो बार बार हम करते जा रहे हैं और वो वैसा करें। Also, don't think that if I fast and pray, God is going to approve my desire or my will to happen. और ये ना सोचिएगा कि मैं अपनी स्वयं की इच्छा को पूरा करने के लिए उपवास रख के प्रार्थना करूं। Always pray, God, discern, God, what is your will for me in this matter? और हमेशा आप जानने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करिएगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस विषय में तेरी क्या इच्छा है। Because God is God. क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर I है। don't know about tomorrow. और मुझे कल के बारे कुछ नहीं God has मालूम। the better perspective. और परमेश्वर के पास उम्दा योजना है। I remember this mother praying for the son at the age of 10 or so. और हम उस बात को घटना को याद करते हैं, एक माँ अपने बेटे के लिए जब वो 10 साल का तो प्रार्थना कर रही थी। When he was very sick and dying, the mother called the pastor to come and pray, and the pastor came and prayed for God's will, and the mother said, "No, pastor, please pray that God would heal my son." और ये बच्चा बहुत ही बीमार था, मृत्यु शैया में था, और इस महिला ने अपने कलीसिया के पासवान को बुला के कहा, पासवान मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें। जब पास्टर ने प्रार्थना किया परमेश्वर की इच्छा के लिए, माँ ने कहा कि नहीं प्रभु के दास, मेरे परमेश्वर की इच्छा नहीं, लेकिन मुझे मेरे बच्चे को जीवित चाहिए। Though God healed that child because of the prayer, but the end of the story is a tragic end that happened to that boy. उस समय परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर उस बच्चे को जीवन तो दिया, लेकिन उस बच्चे का जो अंत था, जो बाद में काफी समय के बाद हुआ, जो बहुत ही दुखद था। Then the mother said, "I should have prayed for God's will." और उस समय माँ ने कहा, उस समय यदि 10 साल में मैं अगर प्रार्थना करती, प्रभु तेरी इच्छा मेरे बेटे के जीवन में क्या हो तो अच्छा So होता। always remember, we need to pray for God's will. इसलिए हमेशा स्मरण रखिएगा, हमेशा प्रार्थना करेगा परमेश्वर की इच्छा के Well, लिए। thank you, friends, for joining, and I have all these wonderful friends here. I see Nisha Saxena joining us, Lilita, Diti, Radhika, Nitin. Thank you all for joining us. और And इन we have सारे लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ। Said Mona, I see Samuel Minch, Jimin Borges, and there are so many of you. Thank you for your comments and thank you for your likings and sharing. और धन्यवाद आप लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए, उसको पसंद करने के लिए, शेयर करने के लिए। Well, we are going to pray right now. और भी हम आप लोग की प्रार्थना करने But जा रहे हैं। before prayer, let's sing this song and glorify God. और फिर प्रार्थना के पहले हम इस गीत को गाएं और अपने जीवन में परमेश्वर को समर्पण करें और प्रभु को नाम को हम महिमा We दें। love our dear sister Anne here. और हम अपनी प्रिय बहन एन के लिए धन्यवाद देते हैं। And Niranjan Kujur, thank you for being, and all of you, Christina, I see you here. There are so many of you. God bless you. May the Lord be with you. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। See you on Friday again. We'll sing this song. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me
heart I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Let this be our prayer this evening. और आज शाम को हमारी प्रार्थना ये हो जाने दे, Lord, change my heart to know your will, to discern your will, and to pray that your will be done in my life. और मेरे जीवन को तो बदल परमेश्वर, जिससे कि मैं जानूं कि तेरी इच्छा मेरे लिए क्या है। There are many prayer requests that have come in. और बहुत से प्रार्थना के निवेदन हमारे पास आए हुए And हैं। we continue to pray for all these dear ones. The Lord has touched, all of them whom we have prayed for, and we have some new prayer requests that have come. और हमने कई विषयों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थना को उत्तर दिया है, और अभी हमारे पास कुछ नए प्रार्थनाओं के विषय आए हुए हैं। Let's pray for our dear brother Augustine Bagge. और हम भाई अगस्टिन बैगी के लिए प्रार्थना करें। And we're going to pray for Sister Meenu who is not keeping well. हम बहन मीनू के लिए प्रार्थना करें जिनकी तबीयत खराब And है। we need to pray for Brother Ravi Verma's mother-in-law who is not keeping well. Let's pray that God will touch her and heal her. और हम भाई रवि की सासू माँ के लिए प्रार्थना करेंगे जिनकी तबीयत खराब है, कि प्रभु उनके छुए चंगाई दे। And we are going to pray for Brother Alok's mom, Meena Sikda's mother-in-law. God, we're going to pray that God is going to touch God's child and heal her. और इस समय प्रार्थना करेंगे मीना सिकदर और आलोक की मम्मी के लिए, परमेश्वर को छू के चंगाई देने के लिए। And as I see there are more names are coming up, many of you are watching. Thank you. We are going to pray for all of you. We are going to pray for Udham Singh. We are going to pray for all the dear ones, Savita Bara, who are baby Kaur, Rohit. You are watching now. We are going to pray for you, all of you. Brother Anil Kumar. Let's pray for all these dear ones, and especially for those needs that are mentioned here. और फिर हम जितने लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने नाम प्रभु के दास ने लिया है, और जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करने चाहते हैं। और जितना प्रार्थना का विषय बताया कि उसके लिए भी हम प्रार्थना करने The चाहते हैं। Bible says when two of us agree together on earth, और बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर अगर दो लोग एक सहमति होकर प्रार्थना के लिए आते हैं, God is going to bind that. God is going to seal or put a seal upon that. It's God's will in heaven, in the spiritual realm, and then God will reveal it in the physical realm. और फिर परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उसके ऊपर मोहर लगा दूंगा, वो बंधा हुआ रहेगा, स्वर्ग में बंधा रहेगा। उस आत्मिक स्तर पर वो आएगा। सबसे पहले आत्मिक स्तर पे आने के बाद हम अपने शारीरिक आंखों से भी उसे As देखेंगे। you're in your homes, if you have a need in your life, your two of you are there, you agree together for that particular need, and God is going to answer that. और अभी आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, यदि आपकी जो भी जरूरत है, आप अभी दो जन वहाँ पर हैं, आप एक बन होकर एक साथ मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेगा। Heavenly Father, we come before your throne of grace. और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दया के सिंहासन के तले आते We हैं। thank you for your word. और धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। Lord, your word says that when two of us agree together on earth, you are going to bind whatever we bind on earth, you are going to do that in heaven also. और तेरे वचन कहता है कि दो जन एक मन होकर जो भी पृथ्वी पर बांधेंगे, तू उसे स्वर्ग पर भी बांधेगा। And God, you are going to answer those prayers. और तू परमेश्वर उन प्रार्थना को उत्तर देगा। When we are praying in your will, discerning your will, oh God, we know that you are going to answer those prayers. और हम प्रभु ने आज सुना है कि हम जब तेरी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं और तेरी इच्छा को समझ के हम प्रार्थना करते हैं, तू हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता At है। this time I pray for all your dear ones who have joined in prayer right now. और हम इस समय जितने लोग प्रार्थना में एक मन होकर जुड़े हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते In हैं Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम से। Whatever needs your children have, oh God, और तेरे संतान को जो भी जरूरत है, I pray that you would meet all their needs. और हम प्रार्थना करते हैं उनकी जरूरत को तू पूरा कर। We pray for Augustine Bagge. और हम प्रार्थना भाई अगस्टिन बागे के लिए, We pray for Brother Ravi Verma's mother-in-law. और हम प्रार्थना भाई रवि की मम्मी के लिए, Lord, we pray for Brother Alok's mom. और हम प्रार्थना भाई आलोक की मम्मी के लिए, Lord, I pray for all other prayer needs that are there. और हम प्रभु प्रार्थना करते हैं मीनू के लिए, और जितने भी प्रार्थना
के विषय हैं। Yes, Lord, we at this time we pray for Meenu especially, oh God. और हम बहन मीनू के लिए विशेष करके प्रार्थना करते All हैं your dear children. और तेरे सारे We संतान pray in the mighty name of Jesus. और यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से हम We प्रार्थना करते हैं। agree together. और हम एक साथ होकर सहमत होते Because हैं Lord, we know that healing is your will for us. और हम जानते हैं कि चंगाई तेरी इच्छा है। So we pray for all your dear people right now. इसलिए हम तेरे सारे लोगों के लिए In प्रार्थना the करते name हैं of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Heal your people right now, तेरे oh लोगों को God. तो चंगा कर दे And all other needs your people have. और जो भी जरूरत तेरे लोगों की है As they agree together in their homes. और जब वो लोग सहमत हो अपने घरों में Maybe for बैठकर their jobs. हो सकता है नौकरी के लिए Maybe for financial हो breakthroughs. सकता है आर्थिक छुटकारा के लिए Lord, maybe for healing in their spiritual, Lord, life or for relational problems, Lord, whatever needs they have, we pray that you would meet their needs. और जो भी इनकी जरूरत है आत्मिक उनके संबंधात्मक जो भी जरूरत है उसे तू पूरा कर। We thank you, Father. हम पिता धन्यवाद देते हैं। Thank you for hearing us. हम धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने Thank के you for लिए। answering us. धन्यवाद देते उत्तर देने के Thank you लिए। for your word. धन्यवाद तेरे वचन के Help us लिए to memorize your word. और हमारी मदद करके हम तेरे वचन को याद Help करने us to वाले हो जाएं। meditate your word. और हमें मदद करके मनन करने वाला हो Help us जाए to pray your word. और धन्यवाद हमें मदद करके तेरे वचन को हम लेके प्रार्थना करने वाले हो That your will जाए be done in our lives. जिससे कि तेरी इच्छा मर्जी पूरी हो We जाए। give you the glory. हम तुझे महिमा देते हैं In Jesus' name. हम यीशु के नाम से And all of मांगते us together say, हैं और हम एक साथ मिलके कहें Amen. Amen. Amen and amen. God bless you. See you all on Friday evening at 7 o'clock. और हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दे। हम बाइबल अध्ययन के लिए फिर मिलेंगे शुक्रवार के दिन। Be safe, be at home, and be blessed. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।